Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Tanmay Kumar Pandit, and I am from the Physics Department. So, today in this lecture, we are going to study about two important mechanisms for electronic materials, particularly, which are emission and absorption mechanisms. Done? Here in this pictorial representation, you can see the photon energy levels are transiting between the ground level and excited level, where two different mechanisms we can observe. One is the absorption, where the photon energy gets absorbed by the electron and it will travel from the valence to conduction band, that means from lower energy to the higher energy level. And on the other hand, we can also see the reversal process, which is of emission. Okay, so when electron in the conduction band or in the higher energy level will lose the energy, at that time we will observe the emission mechanism. Done? So we will detail study of these two mechanism in this particular video lecture. Okay, so here you can observe the word bulk semiconductors. What do you mean by bulk semiconductors? Semiconductor is an electronic material whose conductivity is higher than the insulators but lower than that of conductors like metals. Done? But when you are considering the group of semiconductors, when you are overlapping one by one semiconductors with a particular designing concept, such fabricated material is considered as bulk semiconductors. Done? So, now we will study about the two different mechanisms. Okay? So, semiconductors can absorb and emit photons by undergoing the transitions from valence to conduction band. हमको ये चीज पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा वो एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा, और जैसे ही उसकी एनर्जी कम होने लगेगी वो फोटोन एनर्जी को एमिट करने की ट्राई करेगा, तब वो रिवर्सल प्रोसेस मतलब कि कंडक्शन से वैलेंस बैंड की ओर ट्रैवल करेगा. डन? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये होता तो है हमको पता है, लेकिन वो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा. नंबर वन, हम बल्क सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो वो जो ओवरलैपिंग हुआ है कौन से डिजाइन से हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन उसमें है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा. एंड एनर्जी डिफरेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस, बैंड गैप कितना है उसका, फर्मी एनर्जी लेवल कौन से लेवल पे वो आएगा, हाँ, तो ये सारी चीजें भी मायने रखती है. Of the initial state and final state, and the density of the states. The states means what? The valence band and conduction, उनकी density कितनी है, the number of charge carriers present और उसकी thickness. तो उसका ये जो एरिया कवर होगा वो हम ये डेंसिटी से आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये तीन पैरामीटर काफी अफेक्ट करेंगे फॉर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन मैकेनिज्म. डन? वेरी गुड. There are two different kinds of possibilities of transition in quantum structure. हम अभी वैलेंस और कंडक्शन बैंड के थ्रू बात नहीं करेंगे, उसका जो माइक्रो लेवल होगा, जो क्वांटम लेवल, क्योंकि अभी बल्क सेमीकंडक्टर आ गया, कैसा ओवरलैपिंग है हमको कुछ पता नहीं है. डन? तो इसके लिए हम दो पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करेंगे. नंबर वन, द ट्रांजिशन, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांजिशन बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड. ओके, एंड द सेकंड वन इज the transitions between the quantum confined states within a given band, which is so called inter sub band transition. Then जैसे ही बल्क सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन होगा तो हमने उसको वर्टिकली ओवरलैप किया या हॉरिजॉन्टली ओवरलैप किया है, दैट वी डोंट नो. हाँ, तो इसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि जो मेरा वैलेंस बैंड है उसके अंदर, मतलब कि उसके क्वांटम लेवल में भी कोई और बैंड अभी जनरेट हुआ आफ्टर द फैब्रिकेशन ऑफ दिस बल्क सेमीकंडक्टर. ये चीज भी हमें पता करनी पड़ेगी. ओके, सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ट्रांजिशन की, और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन या एमिशन की प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे. डन? ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन मैकेनिज्म है वो अगर हम ऑप्टिक्स के टर्म में बात करते तो हम उसको लाइट रेस कंसीडर करते, लेकिन यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के रिगार्डिंग. तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स तो एनर्जी पर डिपेंड करता है, तो हम इधर ले रहे हैं फोटोन एनर्जी का कंसेप्ट. तो आगे जाके जो भी एब्जॉर्प्शन या एमिशन की प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे उसमें मैं वर्ड यूज करूंगा फोटोन एनर्जी. डन? पहले हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं
कि जो वेव वेक्टर के वेक्टर आपको दिया गया है और वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एनर्जी की वैल्यूज दी गई है. सो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल ई के डायग्राम, एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर डायग्राम, जिसमें वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके, जो फोटो एनर्जी आप देखिए उसकी डायरेक्शन देखिए, एच कट ओमेगा या एच म्यू, आप कुछ भी लिख सकते हो, डन. दैट इज डिपेंड अपन योर आइडियल थियोरिटिकल डिस्क्रिप्शन. अगर आपने इधर एच कट ओमेगा लिखा है सो थ्रू आउट द थियरी आपको वही मेंशन करना है. और अगर आपने एच म्यू, डन, फोटोन एनर्जी की दोनों वैल्यू सेम है वो हम जानते हैं. सो ये चीज आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी थ्रू आउट द थियरी. यहाँ पे फोटोन की डायरेक्शन है वो मटेरियल के करीब आ रहा है. तो मटेरियल के करीब जब फोटोन एनर्जी आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की जो सेमीकंडक्टर की बेसिकली हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा. क्या करेगा? एब्जॉर्ब. वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो उसके पास ये एबिलिटी है कि जो एनर्जी बैंड गैप है उसको वो क्रॉस करके कंडक्शन की ओर जा सकता है. इसीलिए यहां पे आप डायरेक्शन देखिए इलेक्ट्रॉन की कि एनर्जी बढ़ रही है. डन. एनर्जी इज इंक्रीजिंग क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग दी एनर्जी वैल्यूज. दैट्स व्हाई वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? कंडक्शन बैंड में. तो इस प्रोसेस में होता है एब्जॉर्प्शन. क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. सो यहां पे हमने मेंशन भी किया है डेफिनेशन के थ्रू. इन एब्जॉर्प्शन अ फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल. क्रिस्टल मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल. यहां पे हमारा है जनरल, बल्क, सेमीकंडक्टर. डन. And the energy of the electromagnetic field is transferred through the crystal. जो फोटोन एनर्जी आएगी वो एटमॉस्फेयर से होके आएगी और हमारे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया, एनर्जी ऑफ द फोटोन नहीं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ओके. दिस प्रोसेस ऑफ फोटोन एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन. यहां पे अभी दो वर्ड नए आएंगे, एक स्टिम्युलेटेड और दूसरा स्पॉन्टेनियस. तो स्टिम्युलेटेड क्या है? तो स्टिम्युलेटेड इसलिए यहां पे हमने रीजन भी लिखा है बिकॉज क्वाइट ऑब्वियसली द प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द इनकमिंग रेडिएशन. ये अपने आप पॉसिबल नहीं था. इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी इतनी नहीं थी कि वो वैलेंस से सीधा कंडक्शन बैंड की ओर ट्रैवल करे, लेकिन कुछ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आए जिसको हमने फोटोन एनर्जी भी कंसीडर किया. तो ये इनकमिंग रेडिएशन के थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक ट्रैवल कर सका. सो इनकमिंग रेडिएशन और फोटॉन्स, सम ऑफ विच इवेंचुअली एंड अप गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, ये सारी एनर्जीज हमारे मटेरियल ने एब्जॉर्ब की जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ने यूटिलाइज की. डन. इसकी वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी. तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म आता है, एक चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी बढ़ेगी एंड एट द एंड हमारी सेमीकंडक्टर मटेरियल की भी कंडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आएगा. हाँ, वो फ्रैक्शन में होगा चेंज, वो बहुत ही कम चेंज होगा, लेकिन देयर विल बी अ डेफिनेटली चेंज इन द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. ओके, ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया. एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो सेमीकंडक्टर की बात आएगी, तब हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन. ओके, डन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द अनदर मैकेनिज्म, एमिशन. जो हम एब्जॉर्प्शन में स्टडी कर रहे थे उसका एकदम रिवर्स मैकेनिज्म, टोटली 180 डिग्री. हाँ, वो है एमिशन प्रोसेस. वी हैव सीन दैट the Fermi's golden rule also allows electrons to make transition to the state whose energy is lower. अभी तक हमको यही पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने हायर एनर्जी लेवल में ट्रैवल कर सकता था, लेकिन थैंक्स टू द फर्मीज गोल्डन रूल उसने हमें सिखाया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके भी अपने लोअर एनर्जी स्टेट में भी ट्रैवल कर सकता है. डन. सो whose energy, इसमें कंडीशन भी मेंशन थी. अगर आप उसको रिकॉल करें फर्मीज गोल्डन रूल की थियरी को, तो कंडीशन क्या थी? whose energy is lower than their initial energy by h कट ओमेगा. उसकी फोटोन एनर्जी में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तब जाके आपको उसकी एक्चुअल एनर्जी मिलेगी. और अगर उसकी एनर्जी उससे कम है इलेक्ट्रॉन की मतलब, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस की ओर ट्रैवल कर पाएगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एमिशन प्रोसेस का. हाँ, इसके ऊपर से यही प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके, जो रिवर्सल मैकेनिज्म है उसको यूटिलाइज करके हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे. डन.
An electron in the conduction band can make a transition to a valence band by losing energy equal to h cut omega. अगर वो फोटोन एनर्जी अपने अंदर से लूज कर रहा है तभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड की ओर ट्रैवल कर पाएगा. डन. तो ये एक कंडीशन है. ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही एमिशन बल्क सेमीकंडक्टर के अंदर पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. डन. The energy lost by the electron goes to the electromagnetic wave which initiated or stimulated the transition. अभी सेमीकंडक्टर के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन था, उसने सेमीकंडक्टर के अंदर रह के ही अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर दी, सबट्रैक्ट कर दी अपने अंदर से. तो ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? ये एनर्जी जो लूज हुई ना वो कहाँ जाएगी? सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वो आगे जाके हम स्कीमेटिक में भी देखेंगे. डन. सो यहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि द एब्जॉर्प्शन वाज अ सिंगल, जो इलेक्ट्रॉन पहले एब्जॉर्ब होके कंडक्शन बैंड की ओर आया. जैसे ही कंडक्शन से वैलेंस की ओर जा रहा है द डबल अमाउंट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन हैव बीन लेफ्ट. ठीक है, जो आउटगोइंग रेडिएशन है और इनकमिंग रेडिएशन वो एग्जैक्टली डबल है. हाँ, सो दिस इज द स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस. Quantum mechanically, we say that the electron in the conduction band emits a photon, that is the h mu or h cut omega energy, and makes a transition to the valence band. This process is called stimulated emission. दो चीजें हमने स्टडी कर ली है. नंबर 1 स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 स्टिम्युलेटेड एमिशन. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एनर्जी लूज नहीं करता है, उसके और कोई ऑप्शन के थ्रू वो कंडक्शन से वैलेंस बैंड की ओर ट्रैवल करता है, तो वो फिनोमिना भी हम स्टडी करना चाहेंगे. तो वो फिनोमिना ऐसा है, इन एडिशन टू द स्टिम्युलेटेड एमिशन प्रोसेस एन इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल कैन स्पॉन्टेनियसली, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उस पर ऐसी कोई इफेक्ट नहीं हुई, मतलब कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आया, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज के थ्रू वो उसने फोटोन एमिट किया और वो आया वैलेंस बैंड की ओर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्टिम्युलेटेड और स्पॉन्टेनियस के बीच का डिफरेंस अभी आपको पता चल गया होगा. स्टिम्युलेटेड मीन्स हमें कुछ इनकमिंग रेडिएशंस की जरूरत पड़ेगी फॉर द ट्रांजिशन, लेकिन स्पॉन्टेनियस के केस में ये चीज जरूरी नहीं है. मतलब कि स्पॉन्टेनियस एमिशन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें in the absence of any external parameter, here in particular the electromagnetic field, तो उसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वैलेंस बैंड, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में ही ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन प्रोसेस होगी, ऑप्टिक्स में ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी ये प्रोसेस होगी. तो उसमें भी एक्साइटेड स्टेट में से अगर ग्राउंड स्टेट में किसी को आना है इलेक्ट्रॉन को ही, मतलब तो क्या होगा, उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट तक आ सकता है. डन. आई होप कि ये जो मैकेनिज्म है, बेसिक मैकेनिज्म, वो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम थोड़ा उसको डिटेल में स्टडी करते हैं. हाँ, सो द फिगर डेपिक्ट्स द स्पॉन्टेनियस एमिशन फिनोमिना. अभी आप देखिए स्टिम्युलेटेड एमिशन में क्या था, इनकमिंग रेडिएशन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहां पे इनकमिंग रेडिएशन तो है ही नहीं, उसकी तो एब्सेंट है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टिम्युलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन. In order to determine the emission and absorption rates of the bulk semiconductor, it is necessary to consider their band structure. अगर हमको ये फिनोमिना स्टडी करना है, उसका जो रेट है, कौन से रेट से इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन की ओर आएगा या कंडक्शन से वैलेंस की ओर आएगा, उसकी रेट ऑफ स्पीड क्या होगी, वो मुझे कैसे पता चलेगा. सो उसके लिए हम एक थियोरेटिकल कंसेप्ट यूज करेंगे, एक इक्वेशन उसका डिराइव करेंगे. लेकिन बेसिकली हमें वो इक्वेशन डिराइव करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी वो चीज है उसका बैंड स्ट्रक्चर, क्योंकि बल्क की जब बात होगी ना तो वो एक चीज पहले माइंड में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए. ओके. इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इन अ सेमीकंडक्टर, द एनर्जी स्टेट E2 is occupied by an electron and E1 is unoccupied. और जब भी मैं अनऑक्यूपाइड की बात करता हूं तो मतलब कि वो ऑक्यूपाइड तो है ही, बट नॉट विथ इलेक्ट्रॉन्स, इंस्टेड ऑफ दैट विथ होल्स. ओके, क्योंकि वैलेंस बैंड तो होल से भरा हुआ ही है, वो अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन से है, होल से नहीं. डन.
ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। सो ये तीनों फिनोमिनन हमको समझ में आ गए हैं। अभी उसका हम थियोरेटिकल डेरिवेशन करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि जब स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका रेट क्या होगा, वो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है। थियोरेटिकल हो हमको वो भी पता चल जाएगा। हाँ, सो आइए अभी हम उसको स्टडी करते हैं। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटीज फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद इन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर वेरी मच क्लियरली डिस्क्राइब्ड बाय द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, तो जो कंडक्शन बैंड की जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और वैलेंस बैंड की जो प्रोबेबिलिटी है होल्स को एक्सेप्ट करने की, हाँ, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए FCE2, E2 इज द एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड, FC इज द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंडक्शन बैंड, C सबस्क्रिप्ट हैज बीन यूटिलाइज्ड टू रिप्रेजेंट द कंडक्शन बैंड। So the equation is like this: 1 plus exponential E2 minus EFC upon KBT whole raised to -1. Done? So exponential function को हमने इधर यूटिलाइज किया है। E2 is the energy of the higher energy state, or we can say the energy of the conduction band. EFC, the Fermi Dirac distribution function energy of the conduction band. क्योंकि हमने एक वर्ड आगे स्टडी किया था, आपको अगर याद हो तो, इंटर सब बैंड ट्रांजिशन, तो कंडक्शन बैंड की भी कुछ एक फर्मी एनर्जी होगी, तो वो यहां पे हमने EFC के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू भी आपको पता है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। FVE1 दैट इज द Fermi Dirac distribution function for the valence band energy represented by E1, and V subscript has been utilized to represent valence band. Done? So equation is very much similar. The difference is instead of EFC we have utilized EFV for the representation of the Fermi energy level of the inter subband, or you can say inter sub valence bands. Okay, 1 plus exponential E1 minus EFV upon KBT whole raised to -1. So these two are the equation where EFC and EFV are the Fermi energy levels. Okay, as I explained earlier, expressions give the probabilities that the states in the conduction bands above or below the Fermi levels will be occupied with the electrons. Okay, तो जो भी कंडक्शन बैंड के ऊपर का या नीचे का जो भी फर्मी लेवल होगा, वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब करेगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उधर ऑक्यूपाई हो सकते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अभी हम जो फर्मी डिराक तो हमने देख लिया, उसका इक्वेशन भी मेरे पास आ गया, तो वो हमने देखा था इक्वेशन में कि वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है, उसके साथ क्या चेंजेस आएंगे, तो वो हमने इधर एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है। आप देख सकते हो, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द फर्मी एनर्जी, ओके, एफ ऑफ ई इज नथिंग बट द फर्मी एनर्जी। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल ऑफ रिस्पेक्टिव बैंड्स, एंड द टेम्परेचर, इफ यू लुक एट द टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो, as the temperature increases above absolute zero, the probability of occupying energy levels above and below the Fermi energy has been mentioned as EF on the horizontal axis, you can clearly see it. Then below the Fermi energy levels becomes more gradual. The Fermi energy की जो वैल्यू है वो जैसे ही टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से बढ़ा तब उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है। पहले जीरो टेम्परेचर से भी जब कम था तब जो डिफरेंस आ रहा था फर्मी एनर्जी तक वो बहुत ही स्लो था, मतलब कि बहुत स्मॉल डिक्रीमेंट हुआ था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज आया। डन। तो जैसे ही मैं अगर अभी बात करूं कि ये जो डिफरेंस आया ग्रेजुअल डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट कर गए, तो हमें तीन चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। पहले तो रेट ऑफ एमिशन या एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो पहली बात आएगी स्पॉन्टेनियस एमिशन के रेट की, स्टिम्युलेटेड एमिशन के रेट की, और लास्ट में स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन की भी बात आएगी। हाँ, सो पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट। तो उसका इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 3 में दिया है, RSPV। देखिए V क्यों मेंशन किया हमने,
ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रही है वो वैलेंस बैंड से स्टार्ट होकर वैलेंस बैंड पे ही खत्म हो रही है पूरी। अगर हम आप डिटेल स्टडी करो, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होगा तो उसका एंड क्या होगा? वैलेंस बैंड। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वी इन ऑल द इक्वेशन फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट, सिम्युलेटेड एमिशन रेट और एज वेल एज द स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट। आर एस पी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई सी टू इनफाइनाइट। कंडक्शन बैंड से लेकर आप इनफाइनाइट देख लो, चाहे वो अबो हो या बिलो। A, E2, E1, the transition is A, B and rho are the functions which has been mathematically derived. The function depends on the E2, E1 means the energy bands of conduction and valence bands respectively. FCE2 the conduction band representation energy because वो conduction band से होके valence band की ओर जाएगा. 1 minus FVE1 ZE1 E2 DE2। तो यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस होगा ना, उसमें एक चीज का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो आप मेंशन कर रहे हो इक्वेशन 4 और 5 में, जिसका डायरेक्टली कांटेक्ट किसके साथ है? रो मीन्स की डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम पी एच ऑफ फोटोन, डेंसिटी ऑफ फोनॉन। पी एच जो सब्सक्रिप्ट यूज की है वो फोनॉन के लिए है। अभी जो ए फंक्शन था वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए था, जो बी फंक्शन है वो किसके लिए है? स्टिम्युलेटेड के लिए। डन? ये दोनों चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो बी ई टू ई वन एफ वी ई वन मतलब कि वैलेंस बैंड की एनर्जी। सो ये सिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद सिम्युलेटेड एमिशन। तो इक्वेशन 4 एंड 5 भी सिम्युलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन का रिलेशन है। ओके, सो ये था हमारा डिटेल डेरिवेशन फॉर द एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, एमिशन मैकेनिज्म, बल्क सेमीकंडक्टर क्या है, ये दोनों चीज़ें कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है, फोटोन एनर्जी का क्या रोल है, वो जब एमिशन होगा तब सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आएगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा तब उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आएगा। ये सारी चीज़ों को समझने के बाद एक चीज़ कंफर्म हुई कि हायर टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है उससे जब आगे जाएगी एनर्जी तब उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। ऑप्टिक्स में जो सेमीकंडक्टर लेज़र और सेमीकंडक्टर सोलर सेल जिससे हम फैब्रिकेट करेंगे, उन दोनों में भी इसका रोल है, वो टॉपिक में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं उसकी डिटेल। लेकिन थियोरिटिकल कंसेप्ट कि कौन से रेट से एमिशन होगा, कौन से रेट से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ये हम फाइनली फाइंड आउट कर पाएंगे। स्टिम्युलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस, उन दोनों के बीच का भी डिफरेंस हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसका जो एक डायरेक्ट और रिवर्सिबल प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन और एमिशन की, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, वो हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट कर सकेंगे। थियोरिटिकल कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसको फैब्रिकेशन करके वही पैरामीटर हम उसमें फॉलो करके देखेंगे कि उसके एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं। बहुत ब्राइट फीचर है इसमें ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन का। डन? सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी है, कंडक्टर में भी हम आगे ये स्टडी कर सकते हैं। डन? सो आई होप कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर ओवर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारे कॉलेज में होने वाली अपडेट्स के साथ आप एक्टिव रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो लेक्चर।